Okay, so method of induction. So here method of induction देखेंगे. Now to start with the well we consider an expression. मैं आपको textbook से डायरेक्ट नहीं पढ़ाना, उसका कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. Let us consider one expression. What expression it is? I'll say the expression. You know what is the difference in the equation and expression? तो मैं एक expression consider कर लूँगा. The expression is say 3 raised to n minus 2n minus 1. ठीक है. यहाँ पर मैं n के वेरियस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगा. If I substitute n is equal to say for n is equal to 1, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? 3 minus 2 minus 1 is equal to 0. Correct? If I substitute n is equal to 2, this will be 3 3s are 9 minus 2 2s are 4 minus 1, that is equal to 4. If I substitute n is equal to 3, 3 का cube is 27 minus 3 to the 6 7, that is equal to 20. Isn't it? Now I would say here that this expression is always divisible by 4. अगर ये मैं आपको बता दूं that this expression is always divisible by 4. So would you trust me? पहली बात, 0 is divisible by every number. याद रखिए, 0 is divisible by every number. ऐसा हम मान के चलेंगे, every number. So in this case here if I say n is equal to 1, तो 0 upon 4 वो divisible है, 4 upon 4 divisible है, 20 upon 4 divisible है. If I substitute n is equal to any number 4, 3 3 ये आएगा 81 minus 4 to the 8 1 9, बराबर है क्या? 72 and again it is divisible by 4. So are you going to cross check this for everything, for every expression? Okay, ये possible नहीं होगा. तो इसके लिए मैथमेटिकली एक प्रोसेस डेवलप किया गया. There is a process which is developed and this process is called as principle of mathematical induction. We call this as principle of mathematical induction. कि हर एक चीज को हम ऐसा चेक नहीं करते बैठेंगे. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब वो क्या प्रिंसिपल है हम देखते हैं. What is this principle of mathematical induction? And we are going to make use of this principle many a times. तो मैं पहले वो principle of mathematical induction क्या है वो मैं आपको explain करूँगा. ठीक है. Now this principle is applied in 3 steps. This is applied in 3 steps. तो होगा उसका पहला step, step number 1. क्या होगा? Step number 1. वो जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये जो कुछ स्टेटमेंट है कि बाबा दिस इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n. तो ये जो भी कुछ स्टेटमेंट है इसे मैं बोलूंगा p ऑफ n. p ऑफ n पॉलिनोमियल ऑफ n बोल सकते हैं. इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n, तो मैं इसको बोलूंगा p ऑफ n. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गौर से देखिए, ये बहुत सिंपल टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, सेम टाइप के प्रॉब्लम होते हैं. तो स्टेप नंबर वन टू चेक और वेरीफाई दैट p ऑफ 1 इज ट्रू. ये हमें पहले स्टेप में चेक करना होगा.
Now this step is often referred to as foundation. हम इसे क्या कहते हैं? फाउंडेशन. इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है स्टेप टू. स्टेप टू याद रखिए. टू assume that p of k is true. p of k is true. ये हम assume करते हैं. Often this step is referred to as assumption. हम कई बार इसे क्या कहते हैं? Assumption. Is this clear to all? Okay. And then comes the step 3. फिर आता है step 3. And in this step, to prove that p of k plus 1 is true. And this step is referred to as succession. As the name suggests, it is the succession of the assumption. मतलब हम p of k को जो true assume k है उसको यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे. That's it. So हर एक प्रॉब्लम इस टॉपिक का इसी टाइप के ऊपर बेस्ड होगा. हर एक प्रॉब्लम इसी को आपको ये तीनों स्टेप्स है वो याद रखने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे. दैट्स इट. क्या करना है? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे हम क्या करते हैं? p of n. तो गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज p of n. और फिर हमें क्या करना होता है? ये तीनों स्टेप्स जो है वो अप्लाई करने हैं. पहला स्टेप टू चेक और वेरीफाई p of 1 is true. दूसरा स्टेप टू assume that p of k is true. एंड तीसरा स्टेप टू प्रूव दैट p of k plus 1 is true. ये तीनों स्टेप करने के बाद, ये तीनों स्टेप्स प्रूव करने के बाद we will directly say here, क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है therefore the given result is true. The given result is true for all n belonging to the set of natural numbers. Now this principle is called as the principle of mathematical induction. I am sure कि ये आपको बहुत अच्छे से तो समझ में नहीं आया है. मैंने उसको ब्रीफ आउटलाइन आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. बट लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. इसके ऊपर बस एक ही एक्सरसाइज होगा. एक ही एक्सरसाइज है इसके ऊपर और उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. एग्जैक्टली. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज ऑन पेज नंबर 73. एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 73. ये देखिए 72 वाला पेज है. 73 पर यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो गया. तो इसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ. Let me tell you those sums. I'll be solving the second question, fourth मार्क कर लीजिएगा, फिफ्थ, सेवेंथ, एट ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा. आगे के पेज पर भी कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा. सो फिलहाल मैं सॉल्व करूंगा 2, 4, 5, 7, 8. Is that okay? 2, 4, 5, 7, 8. So let me start with the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 के साथ शुरू करते हैं अभी हम यहाँ पे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Prove by the method of induction for all n belonging to natural number. ऐसा दिया. ठीक है. Prove by the method of induction for all n belonging to natural numbers. ये क्वेश्चन. Just hear the question. Question says prove by the method of induction for all n belonging to the natural numbers. So this is common for all the questions. ये मुझे प्रूव करना है. This is from exercise 4.1. As I told you, मैं कुछ गिने चुने questions ही करना चाहूँगा. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. ये जो expression है, whatever this expression is, I'm going to call this as p of n. पहला टर्म 1 होगा, दूसरा 2, 3, n टर्म्स. तो p of n का ये है LHS.
ये RHS है, this is RHS. ओके, ये RHS और ये जो पूरा का पूरा है उसे हम बोलेंगे P ऑफ N. ये मुझे प्रूव करना है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है मुझे बताइए. सॉल्यूशन. आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, जिसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन. जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन में टू चेक और वेरीफाई दैट P of 1 is true. P of 1 is true. हम चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं. तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम n टर्म्स है ना यहाँ पे LHS में, तो मुझे सिर्फ उसमें से पहला टर्म की बात करनी पड़ेगी, बाकी दूसरा टर्म नहीं होगा. सो व्हाट इज द LHS फॉर द फर्स्ट टर्म हियर. n is equal to 1 अगर होता है तो यहाँ पर टोटल n टर्म्स है, तो वन टर्म के लिए सिर्फ इट्स ओनली 3 हियर. समझे क्या. n is equal to मुझे सिर्फ 1 लेना पड़ेगा, मतलब सिर्फ पहला टर्म LHS में. और RHS में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब 1 into 2 plus 1, that is 3. Therefore LHS is equal to RHS and therefore P of 1 is true. ये पहला स्टेप समझ में आ गया. Do you understand the first step? Please answer everybody. क्या आपको ये सब लोगों को पहला स्टेप समझ में आ गया है. अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ जा रहा हूँ. The second step is called assumption. Assumption क्या करते हैं इस स्टेप में. इस स्टेप में हम assume करते हैं to assume that P of K is true for some K belonging to natural number. मतलब P of K is true. अब इसे अगर मैं P of N कहता हूँ तो बस N के जगह पर मुझे K लेके आना है. N के जगह पर मुझे क्या लेके आना है, K लेके आना है, तो वो P of K बन जाएगा. तो P of K क्या बनेगा, कैन यू प्लीज आंसर हियर. व्हाट विल बी P of K हियर. P of K क्या बन जाएगा, दैट इज 3 plus 7 plus 11 plus dot 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 2 K terms. 2 K terms is equal to K into 2K plus 1. इसे मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा. अब देखिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. कहने की बात अगर देखें तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बराबर है क्या. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4. isn't it? Isn't it? तो kth टर्म क्या आएगा, kth टर्म, because this is T1, this is T2, this is T3, तो ये आएगा Tk and Tk is equal to A plus A minus 1 into D. सही है. That is equal to 3 plus K minus 1 into 4. Open the bracket. So this is 3 plus 4K minus 4 and that is equal to 4K minus 1. तो ये जो kth टर्म है वो क्या आएगा जी. What is the kth term is going to be 4K minus 1. समझ में आ गई बात. तो लेट मी रीराइट दिस अगेन. मैं इसको दोबारा लिखना चाहूंगा. ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 plus 7 plus 11 plus ये क्या आएगा 4K minus 1. ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, kth टर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. समझ में आ गया. इज इक्वल टू RHS में क्या लिखेंगे, K into 2K plus 1. I'll call this as equation 1 और इसे मैं 1 नहीं बोलूंगा बल्कि उसे 1 बोलूंगा. अब ये मुझे यूज करना है अगले स्टेप. Is this clear so far? Now we go for the third step. Third step is often called as succession. Step number 3.
स्टेप नंबर 3 सक्सेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू प्रूव दैट p of k plus 1 is true, to prove that p of k plus 1 is true। अब p of n देखा, यहाँ पर p of n देखा, ये है p of n, राइट। n के जगह पर p of 1 हो जाएगा, n के जगह पर k लिखेंगे तो वो p of k हो जाएगा, एंड n के जगह पर k plus 1 लिखेंगे, n के जगह पर k plus 1 लिखेंगे, समझे। तो मुझे बताइए, दैट इज टू प्रूव दैट क्या बनेगा, ये होगा 3 प्लस 7 प्लस 11। देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है केथ टर्म, अगला और एक टर्म इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे लिखते समय, मतलब ये केथ टर्म तो आ ही जाएगा। व्हाट इज दैट, 4k minus 1, दिस इज द केथ टर्म। लेकिन इसमें और एक टर्म ऐड हो जाएगा, यू नो व्हाट, k की जगह पर k plus 1, समझे। तो अगला टर्म जो ऐड हो जाएगा वो क्या है, 4, k की जगह पर k plus 1 minus 1। सिर्फ मैंने k के जगह पर k plus 1 लिखा है, isn't it? यहाँ पर भी मुझे k के जगह पर k plus 1 लिखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी k plus 1 into 2 times k plus 1 plus 1, k के जगह पर k plus 1। प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू ऑल। आई रिपीट दिस अगेन। यहाँ पर हर एक जगह पर मैंने, देखिए यहाँ पर k तक लिखा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द k plus 1 टर्म। तो बस मैंने k के जगह पर k plus 1 लिखा है। सेम थिंग यहाँ पर भी मैं करूंगा, k और k के जगह पर मैंने k plus 1 लिखना है यहाँ पे। k के जगह पर सिर्फ मुझे k plus 1 लिखना है, और वही चीज मैंने यहाँ पर भी k के जगह पर सिर्फ k plus 1 किया, बाकी सब सेम। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब ये मुझे प्रूव करना है जी, आई हैव टू प्रूव दिस। दिस इज कॉल्ड एज p of k plus 1 एंड आई हैव टू प्रूव दिस। ये मुझे प्रूव करना है। अगर ये मुझे प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, प्रूव बताइए। उसके लिए मुझे LHS से ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। आई हैव टू स्टार्ट विद दिस LHS। ये मुझे प्रूव करना है तो उसको मुझे दोबारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दैट इज टू प्रूव दैट। देखिए क्या है ये, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज 4k minus 1, और ये जिसको ओपन करने के बाद ये आएगा 4k plus 4 minus 1, that is plus 3। and as expected यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस दोनों का plus 4 ही आ गया, 4k minus 1 plus 4 is 4k plus 3। is that understood? is equal to, यहाँ पर RHS में क्या होगा जी, this is k plus 1 and this is 2k plus 2 plus 1, that is 2k plus 3। ये मुझे प्रूव करना है, this I have to prove। so for this I'll start with the LHS। LHS के साथ मैं शुरुआत करूंगा। LHS is this part, ये वाला part, ये LHS है। तो LHS जब मैं लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट 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 प्लस 4k minus 1 plus 4k plus 3। but from equation number 1 that I have already used, ये जो है, if I look at this equation, ये this expression is already there and this is equal to k into 2k plus 1। देखिए ना, is it not the same expression here? Is it not the same expression? So what do you say here from the equation number 1? क्या मिलेगा यहाँ पर, आप लोग क्या बोलोगे? This is equal to क्या है एक्चुअली वहाँ पे? This is equal to k into 2k plus 1। वहाँ पर लिख दूंगा मैं, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, k into 2k plus 1, और बाकी का ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला प्लस
4k+3 will be as it is. समझ में आ गई बात? अब ये LHS है और ये RHS है, तो मुझे प्रूव करना है. दिस इज गोइंग टू बी द RHS. ये है RHS, मुझे यहाँ तक पहुँचना है. दिस इज द RHS. चलिए कंटिन्यू करते हैं. अभी ये क्या बन जाएगा, देखिए जस्ट ओपन द ब्रैकेट. व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? दिस विल गिव मी 2k² plus k plus 4k plus 3, that is equal to 2k² plus 5k plus 3. Now this is 3 to the 6, no? 3 to the 6 and 3 to the 6. बराबर है ना? So this will become 2k² plus 2k plus 3k plus 3. Take 2k common, 2k plus 1. Take 3 common, k plus 1. So this is k plus 1 common. Bracket में आएगा 2k plus 3. And eventually it is the same thing that I want to prove. That is equal to RHS. Is it not? वही prove करना है मुझे. Hello? Isn't it? So what do you say here? LHS is equal to RHS. मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? Therefore P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. इसके बाद जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो कॉमन स्टेटमेंट होगा फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. तो मैंने तीनों स्टेप्स कर दिए, which is foundation, assumption and succession. तो अब लिखेंगे therefore और hence by the principle of mathematical induction. By the principle of mathematical induction. The given result is true. The given result. The given result is true for all n belonging to natural numbers. For all n belonging to natural numbers. Is this clear to you all? Bas, that's it. All the questions are of this type only. All the questions, they are of this type only. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको ये?